Okay, friends. Very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Okay, now let's start. Today I'm going to start Unit 2, and in Unit 2, one head of income, that is income from house property. Okay. Income from house property. As you know, there are in all 5 heads of income. One is income from salary, second, income from house property, third, PGBP, profit and gains from business and profession, fourth, capital gains, and fifth is income from other source. Okay, so we are going to start second head of income, that is income from house property. Okay, so in income from house property, we start from the charging section. What is chargeable under income from house property? So annual value of a house, what is chargeable? Okay, annual value of a house property of which SSC is owner is taxable. In house property, in general, what is taxable? Basically, rental value is taxable. Rent is taxable. Suppose you have a house property, and if you let out that house property to any tenant, and that tenant pays rent to you, then that rent is taxable. But the question is, rent is not a certain amount. People may avoid tax by saying that we are not paying rent. And so the government has decided not to tax rent, but to tax annual value of a house property. We'll study what is annual value in detail. Okay, so section 22 is the charging section of house property head. What does it say? Section 22 says that annual value of a house property, annual value, we'll discuss what is annual value. Annual value of a house property. So first important thing is annual value of a house property, and thereafter of house property. Okay, of which SSC is the owner. So 3 important terms are there in the charging section. That is, first, annual value of a house property, and then SSC is the owner. So first of all, we'll discuss what is house property. तो ये हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, क्योंकि इस साइड में टैक्सेबल क्या होगा, इस साइड में टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी. अब देखते हैं व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी मींस any type of civil construction, any type of civil construction. तो क्या टैक्सेबल है इस साइड में, any type of civil construction, किसी भी तरह का सिविल कंस्ट्रक्शन होगा वो टैक्सेबल है. ये सिविल कंस्ट्रक्शन कैसा हो सकता है, तो रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है सिविल कंस्ट्रक्शन. एंड रेजिडेंशियल हाउस मींस एनी टाइप ऑफ हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, वेदर इट इज अ हट, small hut, or a bungalow, or a villa, or a palace, any type of house property. तो ये रेजिडेंशियल हाउस है, वो कैसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है. स्मॉल, इट मे बी स्मॉल हट, इट मे बी अ लार्ज बंगलो, इट मे बी अ विला, इट मे बी अ पैलेस, इट मे बी अ फ्लैट. ओके, तो किसी भी तरह का रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज हाउस प्रॉपर्टी. ये बात समझ में आती है. नेक्स्ट इज commercial complex. Any type of commercial complex is also house property. Shop, any type of shop, whether it is a large shop or a small shop, large or small, any type of shop is also a house property. An auditorium is a house property. A planetarium is a house property. A swimming pool is a house property, and such type of any other civil construction is termed as house property. तो समझ में आता है ना हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, सभी को बताओ. जी सर. ओके, Yes, sir. Any type of residential house.
रेजिडेंशियल हाउस को Any hut, place, palace. यस यस एनी टाइप ऑफ हाउस। तो ये हाउस कैसा हो सकता है? ये कैसा भी हो सकता है, ये वुड हाउस हो सकता है, वुडन हो सकता है रेजिडेंशियल हाउस। ओके, ये मड हाउस हो सकता है, क्लियर, ये रॉक हाउस हो सकता है, एनी टाइप ऑफ हाउस, इवन बोट हाउस हो सकता है। Okay, sir. ओके, बोट हाउस हो सकता है, ट्री हाउस हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस होता है ना ट्री हाउस, ट्री हाउस। तो ये कोई भी किसी भी तरह का हाउस हो सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ में आती है। रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, इट में बी शॉप, इट में बी ऑडिटोरियम, इट में बी प्लानिटोरियम, इट में बी स्विमिंग पूल। क्लियर? तो हाउस प्रॉपर्टी इज क्लियर। नेक्स्ट इज ओनर। हु इज ओनर? ओनर मींस ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। अभी हम देखेंगे डीम्ड ओनर कौन होता है। ओनर में ओनर तो होता ही है प्लस डीम्ड ओनर, अ पर्सन हु इज नॉट एन ओनर बट ही इज डीम्ड एज ए ओनर। तो वो भी देखेंगे डीम्ड ओनर क्या होता है और ओनर क्या होता है। सेकंड इज एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन सेज दैट एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ विच एसएससी इज द ओनर इज टैक्सेबल। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी वी हैव अंडरस्टूड। नाउ वी डिस्कस एनुअल वैल्यू। सो व्हाट इज एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू मींस, देखते हैं एनुअल वैल्यू कैसे, हाउ वी कैलकुलेट एनुअल वैल्यू। So annual value is taxable, not the rent is only rent is taxable, annual value is taxable. Now the question arises, what is the annual value? So देखते हैं annual value. There are four terms basically, four terms. What are those four terms? One is fair rent, second is municipal valuation, third is standard rent, it is third, and fourth is actual rent. Okay, तो कितने terms हैं? To calculate annual value, there are how many terms? 4 terms. Four terms. Four terms are there. Very good. Okay, there are 4 terms. देखते हैं one by one. What are those 4 terms? One is fair rent. Fair rent means a rent which a house property can fetch in the same locality. Same locality में जो house property को एक rent मिल सकता है उसे fair rent कहते हैं। जैसे देखो, आपके कॉलोनी में अगर 2 रूम्स है, 2 BHK एक फ्लैट होता है, तो उसका एक रेंट होता है ना कि हमारी कॉलोनी में 2 BHK फ्लैट 5,000 पे मिल जाएगा, या 10,000 रुपीज मंथली रेंट पे मिलेगा, या 20,000 पे मिलेगा। हर लोकेलिटी का एक रेंट होता है ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। जैसे अगर बात करें हम किसी सेंट्रल लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे, वहां रेट ज्यादा होगा, तो वहां कोई कहेगा 2 BHK फ्लैट रेंट पे मिलेगा 20,000 रुपीज पर मंथ। थोड़ा सा आउटस्कर्ट होगा, आउटसाइड होगा, सिटी के बाहर होगी प्लेस, वहां हो सकता है वही 2 BHK 5,000 रुपीज रेंट पे मिल जाए। तो ये जितना उस एरिया का रेंट होता है उसे बोलते हैं फेयर रेंट, फेयर वैल्यू। क्लियर? म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? Yes. म्युनिसिपल वैल्यू इज डिक्लेयर्ड बाय म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी होती है ना, जो लोकल अथॉरिटी होती है, वो लोकल अथॉरिटी रेंटल वैल्यू डिक्लेयर करती है हर डिस्ट्रिक्ट का, उसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। थर्ड इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? मेट्रो सिटीज में एक एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंट विच वन ओनर कैन चार्ज फ्रॉम हिज टेनेंट। तो ये वो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम रेंट, जिससे ज्यादा प्रोवाइड रेंट कोई भी नहीं ले सकता। जैसे मुंबई है महाराष्ट्र में, तो मुंबई में बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बहुत कम है, तो वहां जो ओनर्स हैं वो बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं। तो वो ओनर्स हैवी अमाउंट रेंट का चार्ज ना करें, इसलिए वहां एक एक्ट अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड एज रेंट कंट्रोल एक्ट, and that rent control act provides the maximum amount of rent for a particular accommodation which the owner can charge from his tenant। तो उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर है? और एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट जो एक्चुअल में आप चार्ज करते हो, एक्चुअल में जो किराए पे उठाते हो, तो एक्चुअल में जो आपके पास रेंट आता है टेनेंट से, तो एक्चुअल रेंट। क्लियर? जो ओनर टेनेंट से चार्ज करता है। तो एक्चुअल रेंट में हम क्या क्या लेते हैं? जो रिसीव हो गया, एक्चुअल में जो रिसीव हुआ, प्लस जो रिसीवेबल है, जो बाकी रह गया अभी ड्यू है, रिसीव होना है, और उसमें से माइनस कर देते हैं अनरियलाइज्ड, जो अभी रिसीव नहीं होगा। क्लियर है? 4 टर्म्स आर क्लियर। वन इज फेयर वैल्यू, सेकंड इज म्युनिसिपल वैल्यू, थर्ड इज स्टैंडर्ड रेंट, एंड फोर्थ इज एक्चुअल रेंट। ये 4 टर्म क्लियर है सभी को? बताओ।
जी सर। थोड़ा एनर्जी के साथ बोला करो, यस सर मीन्स यस सर, यस सर। यस गुड, ऐसा धीरे धीरे, सर यस। सर स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट दोबारा समझा दो। ओके, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, बहुत सारे मेट्रो सिटीज में, सभी जगह अप्लाई नहीं होता, मेट्रो सिटीज में अप्लाई होता है। वो उन मेट्रो सिटीज में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, रेंट जो एकोमोडेशन है वो कम है, तो ये एक एक्ट अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेंट कंट्रोल एक्ट। वो रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है कि इस अमाउंट से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते। जैसे विले पार्ले है मुंबई में, या कनॉट प्लेस है, सीपी है दिल्ली में, तो ये लोकेशन पे हर कोई चाहता है कि हमें फ्लैट मिल जाए या शॉप मिल जाए, तो जो ओनर है वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबली हाई रेंट चार्ज करते हैं। जैसे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, अनरीजनेबली हाई रेंट, जितना वहां पे वैल्यू नहीं है उससे भी ज्यादा रेंट। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया टेनेंट का, तो वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वो लोग जेन्युइन रेंट चार्ज करें, इसलिए रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है। वो हर लोकेशन के प्रॉपर्टी का एक रेंट प्रोवाइड करता है कि इससे ज्यादा रेंट कोई चार्ज नहीं कर सकता, लीगल सीलिंग लगाता है, अपर सीलिंग लगाता है। तो वो जो रेंट कंट्रोल एक्ट सीलिंग लगाता है, अपर सीलिंग, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर है स्टैंडर्ड रेंट? यस सर। क्वेश्चन में आपको दिए होंगे चारों वैल्यू, अगर क्वेश्चन आता है उसमें दिए होंगे। क्लियर? आपको जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। और एक्चुअल रेंट, जैसे आपके पास मकान है, वो मकान हो सकता है 20,000 रुपए किराए पे उठ सकता है, लेकिन आपने अपने रिलेटिव को 10,000 रुपए किराए पे ही उठाया है, तो 10,000 रुपए जो एक्चुअल में आपको मिल रहा है वो क्या है? एक्चुअल रेंट। या हो सकता है 10,000 रुपए में उठ सकता है, लेकिन आपने 15,000 में उठाया है, कोई अच्छा टेनेंट मिल गया आपको जो पेइंग कैपेसिटी ज्यादा दे रहा है, तो 15,000 जो एक्चुअल में आपको मिल रहा है वो क्या है? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मींस व्हाटएवर अमाउंट एक्चुअली यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर टेनेंट। सो सिंपल। क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अब देखते हैं एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू को और म्युनिसिपल वैल्यू को। फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो भी हायर वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो भी हायर वैल्यू होती है वो हायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर किया और दोनों में से हमने क्या किया? हायर वैल्यू, ठीक है। हायर वैल्यू बाहर आ गई इन दोनों में से। क्लियर? जैसे हम फिगर लेके बताते हैं आपको। देखो, जैसे ये है 10,000 रुपीज, ठीक है, और ये है 15,000 रुपीज। दोनों में से हायर क्या है बताओ? 10 और 15 में से हायर क्या हुआ? 15,000। 15,000। तो यहाँ पे बाहर क्या आ गया? 15,000। क्लियर? तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, जो हायर आया उसे बाहर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मान लेते हैं है 20,000। तो स्टैंडर्ड रेंट को और इसे कंपेयर किया, इस 15,000 को और स्टैंडर्ड रेंट को, इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लोअर, यहाँ पे क्या है? लोअर, तो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो यहाँ लिख लिया। लोअर कितना है? 15,000। पहले हायर को कंपेयर किया, फिर लोअर को कंपेयर किया, 15,000 आ गया, ठीक है ना? यस। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, ये जो अमाउंट आया 15,000, इस 15,000 को और एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया। एक्चुअल रेंट मान लीजिए आप ले रहे हैं 22,000, तो इस 15,000 को और 20,000 को, ये जो 15 है, इस 15,000 को और 20,000 को कंपेयर किया, और इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आई दैट इज 22,000। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई? 22,000। क्लियर? इसका मतलब जो एनुअल वैल्यू हो गई वो एनुअल वैल्यू कितनी हो गई? 22,000। समझ गए? यस सर। ठीक है, देखो सिंपल, हायर लोअर हायर, पहले दो को कंपेयर किया, हायर बाहर ले लिया, फिर जो वैल्यू आई उसे कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से, जो वैल्यू लोअर आई लोअर ले लिया, उसके बाद कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, जो वैल्यू हायर आई वो हायर ले लिया। क्लियर है? ऐसे हमारे पास आ गई एनुअल वैल्यू। क्लियर है? ये बहुत टेक्निकल होता है, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो 4-5 पेजेस में एक्सप्लेन किया होगा यही प्रोविजन। क्लियर? सेक्शन 23 अप्लाई होता है कैलकुलेशन के लिए, और सेक्शन 20 देखो यहाँ दिया है, दिखाते हैं आपको सेक्शन
की जो लिस्ट है उनमें से देखो ये है ना सेक्शन 23 1 A B C एनुअल वैल्यू, क्लियर। तो जो एनुअल वैल्यू है उसके कैलकुलेशन, फिर एक्सप्लेनेशन। तो ये जो पूरा सेक्शन 23 है ये बताता है एनुअल वैल्यू। और ये जो टैक्स की लैंग्वेज है इट इज अ टिपिकल लैंग्वेज, वो टेक्निकल लैंग्वेज है, 2-3 पेजेस कवर करती है किसी भी बुक में और कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इससे आसान नहीं हो सकता समझाना एनुअल वैल्यू को, क्लियर। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा एनुअल वैल्यू मीन्स क्या, 2-3 बार की रीडिंग में समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स को। क्लियर है स्टूडेंट्स? बेटा क्लियर है एनुअल वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. देखो फिर से एक बार लेट अस समराइज annual value. How we calculate annual value? First we compare fair value and municipal valuation and we take higher amount. दोनों को कंपेयर करते हैं, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो लेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और जो लोअर वैल्यू होगी वो लोअर वैल्यू लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे जो वैल्यू आई उसे एक्चुअल रेंट से और जो हायर वैल्यू होगी वो हायर वैल्यू लेंगे। ऐसे करके जो फाइनली हमारे पास आएगी लास्ट में जो वैल्यू आएगी, जैसे 22,000 आया ना, ये जो फाइनल वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एनुअल वैल्यू। क्लियर? चलो Yes, आपको 2 टर्म क्लियर हो गए। वन इज, देखो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी चार्जिंग सेक्शन, व्हाट डज इट से? दिस चार्जिंग सेक्शन सेज दैट एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ विच ओनर इज टैक्सेबल, एसएससी इज द ओनर, इज टैक्सेबल। तो एसएससी ओनर हो तो देखो क्या हमने देखा, हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है हमने देख लिया, एनी टाइप ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। एनुअल वैल्यू क्या होती है हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि एसएससी इज द ओनर, तो ओनर मींस व्हाट, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर, वो भी देखेंगे अभी एक बात। दूसरा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो आपके बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रही है वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आपके पास सपोज आपके पास मकान है, एक एक्स्ट्रा मकान है, मान लो 2-3 मकान थे, उनमें से एक मकान आपने क्या किया, शॉप थी या कोई भी मकान था, उसे आपने अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया, उसे बिजनेस प्रोफेशन में ट्रांसफर कर दिया, दैट मींस यू आर यूजिंग दैट हाउस इन योर बिजनेस और प्रोफेशन, तो वहां यूज किया। तो इस हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स इंपैक्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगा। क्लियर? तो बिजनेस प्रोफेशन में क्या होगा, जैसे आपके पास हाउस है कोई, मान लेते हैं सिंपल, यहां देखते हैं, देखो एक हाउस है, ये आपके पास एक हाउस था या शॉप थी, मान लेते हैं ये एक शॉप थी। इस शॉप को आपने क्या किया, आप इसे ले गए अपने बिजनेस और प्रोफेशन में, तो फिर ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये जो शॉप है जिसे आपने बिजनेस प्रोफेशन में ले गए, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये टैक्सेबल नहीं होगी। कहां होगी टैक्सेबल? बिजनेस प्रोफेशन हेड में, वो हम देखेंगे वहां जब बिजनेस प्रोफेशन होगा, तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके आगे देखते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ओनर, मीनिंग ऑफ ओनर। ओनर क्या है? तो ओनर का मतलब ओनर तो होता ही है, साथ में डीम्ड ओनर भी ओनर होता है। तो डीम्ड ओनर की डेफिनेशन सेक्शन 27 डिफाइन करता है। डीम्ड ओनर क्या होता है, तो हम डीम्ड ओनर देखते हैं। देखो डीम्ड ओनर, हमने ये सेक्शन है लेकिन हमने शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं। ये डीम्ड ओनर का सेक्शन 27 है, जहां पे ओनर नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि दे आर ऑल्सो डीम्ड एज ओनर, उन्हें भी ओनर माना जाएगा। वो एक्चुअल में ओनर नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें ओनर माना जाएगा। तो देखते हैं किस किस को डीम्ड ओनर, वो एक्चुअल में ओनर नहीं है लेकिन ऑन रिकॉर्ड लीगली दे आर नॉट ओनर, ऑन रिकॉर्ड दे आर नॉट ओनर, देन ऑल्सो इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 27 says that they will be deemed as owner, उन्हें माना जाएगा ओनर। क्लियर है? तो देखें एक बार किस किस को माना जाता है ओनर। यस, पहला फर्स्ट देखो, इफ अ पर्सन ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी, एक पर्सन है वो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, किसे ट्रांसफर करता है, ये पर्सन है मान लेते हैं, एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। किसे ट्रांसफर कर देते हैं? अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को। ऐसा क्यों करता है कोई पर्सन? देखो इंडिया में 2 हाउस प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती हैं और उन पे टैक्स नहीं लगता। जैसे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्रॉपर्टी नंबर 1, दूसरा भी हाउस है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नंबर 2, 2 मकान है, तो इन पे टैक्स नहीं लगता। अभी हम देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 हाउस प्रॉपर्टी, इफ दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप खुद उसमें रह रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता।
इन्होंने क्या किया, एक तीसरा मकान भी खरीद लिया। ठीक है, तो ये दो ही तो एग्जाम करा सकते हैं, तीसरा मकान खरीद लिया, इस पे टैक्स लगेगा। तो इस मकान को इन्होंने क्या किया, इस मकान को अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया। वाइफ को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लीगल ओनर किसे बना दिया, वाइफ को। लेकिन ये जो वाइफ है इन्हें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इन्हें पैसा नहीं लिया, ये जो कंसिडरेशन नहीं लिया, क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में लीगल ओनर कौन हो गया, इस मकान का लीगल ओनर कौन हो गया, लीगल ओनर तो वाइफ हो गई ना। आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहो, वाइफ लीगल ओनर हो गई है ना। कानून में कागजों पे कौन मालिक हो गया, वाइफ हो गई। तो दो मकान इनके पास और एक मकान वाइफ के पास। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है आप ऐसे करके टैक्स बचाओगे तो हम नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, ये जो तीसरा मकान है, पहले मकान के ओनर कौन है, मान लो ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, और ये कौन है, ये लेडी है मिसेज एक्स। तो ये जो पहला मकान है उसके ओनर भी मिस्टर एक्स, दूसरा मकान है उसके ओनर भी मिस्टर एक्स, और ये जो तीसरा मकान है जो इन्होंने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया, उसके भी डीम्ड ओनर कौन माने जाएंगे, उसके डीम्ड ओनर भी मिस्टर एक्स, यानी तीनों मकान के ओनर मिस्टर एक्स ही माने जाएंगे। क्लियर है। सेम काम इन्होंने माइनर चाइल्ड के लिए इन्होंने क्या किया, बच्चे के नाम, टैक्स बचाने के लिए क्या किया, एक मकान को बच्चे के नाम ट्रांसफर कर दिया बिना पैसे लिए। छोटा बच्चा था माइनर, 18 साल से कम का, उसके नाम ट्रांसफर कर दिया, तो भी क्या माना जाएगा, तो भी वो, मान लो इनके पास एक फोर्थ मकान और था, मान लेते हैं, ठीक है, इनके पास एक फोर्थ मकान और था। ये कौन सा था, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी। इसे इन्होंने क्या किया, जो फोर्थ मकान है इसे इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसे, अपने माइनर छोटे से, देखो इसका साइज भी छोटा है ना, छोटे बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो छोटे बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, फोर्थ मकान के लिए भी ओनर कौन माना जाएगा, मिस्टर एक्स ही मालिक माने जाएंगे, बच्चा नहीं माना जाएगा। क्लियर है, समझ गए। क्लियर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। दो केस में ये डीम्ड जो प्रोविजन है, डीमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं होगा। पहला, अगर हस्बैंड वाइफ है और वो लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने क्या किया, हस्बैंड वाइफ ने डाइवोर्स की एप्लीकेशन दी, ठीक है, ये हस्बैंड थे और ये वाइफ हैं, ठीक है, लंबे लंबे बाल हैं इनके वाइफ के, तो वाइफ हस्बैंड दोनों, तो इन्होंने क्या किया, डाइवोर्स की एप्लीकेशन दी। तो डाइवोर्स की एप्लीकेशन के समय जो कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट ऑर्डर करता है कुछ समय तक आप लिव अपार्ट, अलग अलग रहो 1 साल तक, क्लियर, उसके बाद डाइवोर्स देंगे। तो 1 साल तक लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में कि हम अलग अलग रहेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर इन्होंने वाइफ के नाम अगर ट्रांसफर किया कोर्ट ऑर्डर से कोई मकान, तो फिर वो वाइफ का ही माना जाएगा। क्लियर है, अगर ऐसा केस होगा तो वाइफ का ही माना जाएगा लिव अपार्ट में। समझ गए। जी सर। कोर्ट ने कहा कि आपके पास 5 मकान है, एक मकान वाइफ अलग रहेगी तो वो रहेगी कहाँ, लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 साल के लिए, हम कह रहे हैं वाइफ को अलग रखो, तो 1 साल तक वाइफ अलग रहेगी तो कहाँ रहेंगी, उनके पास मकान नहीं है, तो एक मकान उनके नाम ट्रांसफर करो। तो एक मकान इन्होंने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया कोर्ट के ऑर्डर से, तो ऐसा किया तो फिर वो जो मकान है वो वाइफ का ही माना जाएगा, डीमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। सेकेंड, मैरिड डॉटर, अगर माइनर है, ध्यान से देखो, माइनर है और मैरिड डॉटर है, माइनर कौन है, जैसे एज 17 ईयर्स की एज है और मैरिड डॉटर है ना, उसकी मैरिज हो जाती है। आप कहोगे कि मैरिज तो अलाउ नहीं है 18 से कम, है ना, अ गर्ल इज नॉट एलिजिबल टू गेट मैरिज बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो मान लो इलीगल मैरिज कर दी तो भी मैरिज तो वैलिड होती है, एक बार हो जाए तो फिर वैलिड होती है मैरिज, है ना, मैरिज को सेपरेट नहीं कर सकते, पनिशमेंट होता है वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर माइनर मैरिड डॉटर है, उसके नाम में अगर कोई मकान ट्रांसफर किया तो वो डॉटर का ही माना जाएगा, वहां डीमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं होगा। समझ गए। यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी टैक्स बचाने के लिए ऐसा करेगा कि अपनी डॉटर के नाम ट्रांसफर कर दे मकान, वो भी मैरिड डॉटर के नाम। टैक्स 1 करोड़ का मकान है, हम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो वो मैरिड डॉटर के नाम ट्रांसफर कर दे मकान 1 करोड़ का, तो टैक्स तो बच जाएगा। लेकिन ये मकान वापस आएगा या ये मकान चला जाएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा वापस, चला जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है चला जाए, क्योंकि जो मैरिड डॉटर है, मैरिड डॉटर तो वापस कर दे, लेकिन जो सन इन लॉ है वो सन इन लॉ तो वापस नहीं देना चाहेगा ना मकान। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर, क्योंकि जनरली कोई करता ही नहीं है ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई टैक्स सेव करने के लिए मैरिड डॉटर के नाम मकान ट्रांसफर करे, तो करता ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी करे तो वो उसी का मकान माना जाएगा। समझ गए ना।
अगर कर भी दे ऐसा तो भी वो मकान माइनर डॉटर का ही माना जाएगा, डीमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन यानी डीम्ड ओनर इम्पार्टेबल एस्टेट। ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि 4 5 ये ऐसे करके 1 2 3 4 ये 4 ब्रदर्स थे, है ना? 4 ब्रदर्स थे, तो इनका जो प्रॉपर्टी थी बहुत सारी, वो सारी प्रॉपर्टी क्या हुई, सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्रॉपर्टी, और किसी को बंगला मिला, किसी को पैलेस मिला, किसी को शॉप मिली, किसी को कॉमर्शियल, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना? लेकिन एक चीज ऐसी थी इनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी में, सपोज फादर की डेथ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो क्या था? ये क्या दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? ये टेम्पल। अरे वाह, गुड, टेम्पल। तो ये क्या है? टेम्पल। तो सपोज इनके पास टेम्पल भी था एक, और ये जो टेम्पल था वो टेम्पल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? बंटवारा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, टेम्पल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, इसे बोलते हैं इम्पार्टेबल एस्टेट, ऐसी एस्टेट जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। तो इसके केस में क्या होगा कि कोई भी ओनर नहीं है इसका, लीगल ओनर कोई भी नहीं है ना? या सारे लोग ओनर है, मान लेते हैं, या तो कोई भी नहीं है, 4 के 4 सारे ब्रदर्स ओनर है। तो ये जो चारों भाई ओनर हैं, तो फिर टैक्स कौन पे करेगा? अगर इसे किराए पे उठाया और सपोज टैक्स रेंट आ रहा है तो टैक्स कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी पर्सन होगा जिसके पोजीशन में होगा ये, उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। वो कहेगा मैं अकेला ओनर नहीं हूं, 4 लोग ओनर हैं, चारों भाई ओनर हैं, तो भी उसे क्या माना जाएगा? जिसके पोजीशन में होगा उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ गए? तो गवर्नमेंट टैक्स जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो किससे टैक्स वसूल लेगा? वो सारा टैक्स उसी से वसूल लेगा जिसके पोजीशन में है। ठीक है? वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो ओनर नहीं हूं, तो उसे क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड एक्सेप्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान से देखो, ये हमने एक मैप बनाया हुआ है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सपोज 50 मेंबर्स थे, 50 मेंबर्स, 50 लोगों के पास, सबके पास मान लेते हैं सबके पास 1 करोड़ रुपए थे। सबने कहा हम बड़ा मकान बनाना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए में, लेकिन खुद बनाएंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत बड़ा मकान नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने क्या किया? एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई, और सबने 1 करोड़ कंट्रीब्यूट किया। तो अगर सब लोग 1 करोड़ कंट्रीब्यूट करेंगे, 50 लोग, तो कितना पैसा आ जाएगा? 50। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 50 करोड़। इन लोगों के पास 50 करोड़ रुपीस आ गया। 50 करोड़ से इन्होंने देखो ये लैंड परचेज किया, ये पूरा लैंड है ना यहां तक का, ये पूरा लैंड परचेज किया, और 50 यूनिट्स उस पर मकान बनाए बड़े। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लैंड है वो किसने परचेज किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी ने परचेज किया, ठीक है? और उस पर हाउस बनाए। कितने हाउस बनाए? 50, और सभी मेंबर्स को एक एक हाउस दे दिया। क्वेश्चन ये राइज, जो जमीन थी, ये जो जमीन थी, इस जमीन का लीगल ओनर कौन है? हु इज द लीगल ओनर ऑफ दिस लैंड? बताओ, लीगल ओनर कौन है? लीगल ओनर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ गए? लीगल देखो, जैसे 50 लोग थे, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए थे, सब बड़ा बंगला बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा अगर हम लोग सब साथ में आ जाएं और एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना लें, और एक साथ मिलके 50 करोड़ रुपए से जमीन खरीदें, सोसाइटी जमीन खरीदे, उस जमीन से 50 यूनिट बनाए, और एक एक यूनिट सब लोग ले लें, एक एक बंगला, तो ज्यादा अच्छा बंगला बन जाएगा, ज्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो फिर उन्होंने लीगल ओनर, तो उन्होंने क्या किया कि ये लैंड परचेज किया 50 करोड़ रुपए का, और उसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। ठीक है? तो ये जो जमीन परचेज की वो किसने परचेज की? बताओ, जमीन परचेज की सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। तो इस जमीन का मालिक कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने उस पर बंगले बनाए, और फिर एक एक बंगला सबको अलॉट कर दिया। अलॉट क्या कर दिया? उन्हें मेंबर बना लिया, सारे 50 लोग मेंबर बन गए, और हर मेंबर को एक एक बंगला अलॉट कर दिया। तो लीगल ओनर कौन है? लीगल ओनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना? जी सर। लेकिन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इन 50 ओनर्स ने मान लो किराए पे उठा दिया ये सारे बंगला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा टैक्स मांगने। ये बंगला मान लो फर्स्ट है, वो मिस्टर एक्स का है, मिस्टर एक्स का, ये वाई का है, ऐसे अलग अलग। ये बंगला किराए पे उठा दिया इन्होंने, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स मांगने जाएगा, तो ये कहेंगे मैं तो ओनर ही नहीं हूँ, देख लो रिकॉर्ड पे, ओनर तो कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जाओ उससे मांगो। क्लियर? तो हर कोई टैक्स नहीं देगा, ये कहेगा मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 57 में एक डीमिंग फिक्शन लगाया, और वो डीमिंग फिक्शन में क्या कहा? मिस्टर एक्स तुम ही माने जाओगे मालिक, तुम एक्चुअल में मालिक नहीं हो, लीगल ओनर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम ही मालिक माने जाओगे। तो ये जो सारे मेंबर है अपने अपने फ्लैट के, अपने अपने बंगला के, ये क्या माने जाएंगे? मालिक माने जाएंगे।
समझ गए? जी सर। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखते। देखो 2 और टॉपिक रह गए, टाइम भी कम है हमारे पास, देखते हैं आज कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 53A ऑफ टोपा। टोपा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना। देखो जो ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर से रिलेटेड इंडिया में 2 एक्ट होते हैं। एक एक्ट होता है टोपा और एक होता है सोगा। देखो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और एक होता है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज पे एक्ट अप्लाई होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर पे अप्लाई होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होता है 53A, वो 53A क्या कहता है कि पार्ट ट्रांसफर। पार्ट ट्रांसफर क्या होता है? देखो जैसे ध्यान से देखो, आपने एक मकान खरीदा किसी से, मकान, एक बंगला था बड़ा सा, वो बंगला परचेज किया। वो बंगला परचेज करते हो, जैसे ये बड़ा सा बंगला था, मान लेते हैं ये बहुत बड़ा, हम छोटा सा बना रहे हैं, एज्यूम करो ये बहुत बड़ा सा बंगला है, ठीक है। तो ये बंगला आपने परचेज किया तो आपने क्या किया, आपने पेमेंट, 50 लाख का बंगला था, इसकी प्राइस कितना था 50 लाख। तो आपने क्या किया 50 लाख रुपीज पे कर दिया, ठीक है। 50 लाख रुपए आपने पे कर दिया, पेमेंट चला गया, आपको पोजीशन भी मिल गया, जो इसकी की थी वो की मिल गई बंगले की, आपका पोजीशन भी मिल गया, ठीक है। तो पोजीशन मिल गया, पैसा पेमेंट कर दिया। एक चीज और रह गई, क्या रहती है? पर जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो एक काम और होता है, क्या रहता है, रह गया बताओ? इस मकान की रजिस्ट्री। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। रजिस्ट्री, जो हम तहसील में जाकर रजिस्ट्री कराते हैं ना रजिस्ट्रार के पास, वो रजिस्ट्री नहीं हुई अभी। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे देखते हैं 2 लोग थे, 2 लोग कौन कौन थे, है ना। एक ये मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स कौन थे, सेलर, और एक मिस्टर वाई थे, मिस्टर वाई कौन थे, बायर। सारा काम हो गया, मिस्टर वाई ने क्या किया, बायर थे, इन्होंने क्या किया 50 लाख रुपए इन्हें पे कर दिए, ₹50 लाख, ठीक है 50 लाख। और इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने मकान की चाबी दे दी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, है ना। तो वो भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तो अभी तक ओनर कौन है, मिस्टर एक्स ही ओनर है। लेकिन सेक्शन 53A वाला केस हो तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 27 किसे ओनर माना जाएगा, मिस्टर वाई को, क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया, पोजीशन ले लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, तो भी किसे माना जाएगा, मिस्टर वाई को ही मान लिया जाएगा कि ये ओनर है। अभी तक ये लीगल ओनर नहीं बने ना, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई, फिर भी इन्हें क्या मान लिया जाएगा। प्रूफ कैसे हुआ कि पैसे पैसा का ट्रांसफर है ना, पैसा दे दिया और पोजीशन ले लिया। अगर ये दोनों